Good morning, everyone. Today, I myself is Anuj Kumar and I am Assistant Professor in Computer Science and Engineering Department in Ajay Kumar Garg Engineering College. Today, we have to be discussed how we have to be solve the expressions using stack. In the last time, we have to be discussed what is an algorithm. So after that, when we have to be solve the expressions, so firstly, we have to be know the what is the applications. Wait. Okay. So we have used in the application of the stacks. We have to be solve this expression. Suppose we have to be write equation that is 5 plus 4. So we can be solve it easily. But it will be if I am writing here 5 4 plus and then says 2, what is the answer of this? So we cannot be say what is the answer of this, or otherwise what we do if we have to be writing that is plus 5 4, so we cannot be say what is the answer of this. So these are the applications of stacks. Firstly, we have to be discuss the application of the stack. Second one, we have to be discussed how we have to be convert these expression into different notations. Then we have to be solve the postfix expression just like this. If we have to be giving this equations, so what is the answer of this? And next, if we have the algorithms, what are the algorithms to solve? And next is the difference between recursion and the regression. So these are the applications means where we are using the stack, as we have to be discussed earlier what is the stacks. Today we have to be discussed what are the applications of the stack. So stack is used to solve the expressions. There are the three type of the expression. When we use in the mathematical notations, so we use the Polish notations, means we have to be write equation in the different form. These are known as the Polish notations. कैसे लिख सकते हैं कि कोई भी एक मेरा एक एक्सप्रेशन है वो दो चीजों से मिलके बनता है, दैट इज ए बी एंड प्लस, वेयर ए एंड बी आर नोन एज द ऑपरेंड्स एंड प्लस इज ए ऑपरेटर. क्लियर? तो एक एक्सप्रेशन जो भी हमारा यहाँ पे बनता है कि दैट इज कंसिस्ट ऑफ द टू थिंग्स. नंबर वन इज द नंबर ऑफ द ऑपरेंड्स एंड सेकंड वन इज द नंबर ऑफ द ऑपरेटर. तो देयर आर द three ways. From here what we do, we have to put the number of the operator between the number of the operands. Second condition is this, we have to be put this number of operator after the number of the operands. And third one is what, we have to be put this operator before the these two operators. So we have represent equation in the three types. So these are known as the Polish notations. Clear? So when we have to be given these equations in the different form, so we have to be firstly, this is the expression keep using the stack. If we have to be solve this expression, suppose as अभी जो किया था that is 5 plus 4, we have give the answer. But if we are giving 5 4 plus, then what is the answer? And then 5 4 this. So for this solving this expression, we are using the stack. So we have to be convert an expression into this notation to this and this notation to this. Main is the next the Tower of Hanoi and next one is the NQ problem. But here today we have to be discuss the expression. Okay. So when we have to be write at expression, it will be into the three parts. Number one is known as the infix notation. Second one is known as the prefix notation. Third one is known as the Polish postfix notations. So suppose we have to be, when we have to be put it operator in between the number of the operands. So when we have put, this is known as the infix expression. When we have to be put this number of operator before the number of the operands, then it is known as the prefix expression. And when we have to be put this number of operator after the number of the operands, then it is known as the postfix नोटेशन. कैसे हम इसको अब कन्वर्ट करते हैं कि सपोज फर्स्ट में हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया दैट इज a प्लस बी. प्रीफिक्स क्या कहता है कि प्रीफिक्स में जो भी ऑपरेटर्स जिन दो ऑपरेंड्स के बीच में अप्लाई हुआ है हम उसको कहां पे पुट कर दे, बिफोर. तो दैट इज द प्लस ए बी. दिस इज द सेम हियर. पोस्टफिक्स में क्या कहता है, जो ऑपरेटर्स जिन दो ऑपरेंड्स के बीच में अप्लाई हुआ है वी हैव टू बी पुट आफ्टर. तो दैट इज द ए प्लस बी. नाउ इसी इक्वेशंस में इंक्रीज करते हैं दैट इज ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी. तो फर्स्टली हम इसमें क्या सोल्व करेंगे, दैट इज ए प्लस बी मल्टीप्लाई दैट इज मल्टीप्लाई सी. वेट ठीक. तो जब इसको सोल्व करेंगे फर्स्टली क्या सोल्व होगा मेरा, ब्रैकेट. देन क्या सोल्व होगा, ब्रैकेट को जब हमने यहाँ पे इसको सोल्व, ब्रैकेट को जब यहाँ पे हमने सोल्व किया तो इसका मेरा आंसर क्या निकल के आया ब्रैकेट का, दैट इज
प्रीफिक्स में कर रहे हैं तो ए बी से पहले क्या आ गया, दैट इज ए पी प्लस, तो ये मेरा क्या है, एक ऑपरेंड्स है, सेकंड ऑपरेंड्स क्या हो गया, अब सी, दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा बिफोर दैट, तो ये आंसर क्या आ गया, दैट इज मल्टीप्लाई प्लस ए बी एंड सी. सेम वी हैव टू बी डूइंग कन्वर्ट इनटू द पोस्टफिक्स. तो फर्स्टली वी हैव टू बी सॉल्व दिस. तो वो भी मेरा ऑपरेटर्स है, वो कहाँ आएगा, बाद में आएगा, दैट इज ए बी प्लस. तो मेरा आंसर क्या आया, ए बी प्लस. दिस इज वन ऑपरेंड्स ए बी प्लस. नेक्स्ट क्या आ गया, सी, दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो वो है क्या आएगा, दैट इज ए बी प्लस सी एंड मल्टीप्लाई. तो सेम हियर वी हैव टू बी पुट हियर कि इफ यू आर यूजिंग द एक्सप्रेशन ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, तो व्हाट इज द प्रीफिक्स नोटेशन, दैट इज मल्टीप्लाई ए बी सी एंड दिस वन. ठीक, तो दिस नाउ वी हैव टेकिंग ए इक्वेशंस की सपोज वी हैव टू बी कन्वर्ट these expression from infix to here. What we do, we have to be convert given expression infix, we have to be convert into the prefix or we have to be convert into the postfix. So suppose we are taking one example ki we have the different types of the equations expression and we have to be convert from which into the postfix. So let us consider one by one ki suppose we have a equation which one, that is the a plus b plus c plus d and we have to be convert into the postfix. तो फर्स्टली सबसे पहले हम क्या पुट करते हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के अंदर सारे सिंबल्स हैं हम उसको स्कैन कर लेते हैं इंडिविजुअली. दैट इज ए, दैट इज प्लस ब्रैकेट बी मल्टीप्लाई सी ब्रैकेट क्लोज डिवाइड डी एंड ब्रैकेट क्लोज. सेकेंड वन कि भाई वी आर यूजिंग द स्टैक कि सपोज अगर मैं यहाँ पे अब आपको एक इक्वेशन दे दूं a प्लस बी मल्टीप्लाई सी, तो फर्स्टली हम क्या कर रहे हैं कि जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहले क्या चीज सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स. इसका मतलब जब भी मुझे सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट, फिर क्या होता है पावर, फिर क्या होता है दैट इज डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई, देन प्लस एंड माइनस. ठीक, और हमेशा जब भी हम यहाँ पे करते हैं दिस इज द अकरेंस प्रीडेंस, अगर मेरी यहाँ पे आई है तो सबसे पहले क्या सोल्व होगा, ब्रैकेट देन पावर देन मल्टीप्लाई डिवाइड देन प्लस एंड माइनस. उसके बाद यहाँ पे हम इसकी एसोसिएटिव देखते हैं कि जैसे सपोज कहीं किसी एक्सप्रेशन में क्या आ गया, दैट इज ए प्लस बी माइनस सी. ठीक, प्लस और माइनस क्या है, बोथ आर द सेम, प्रीडेंस दोनों की क्या है सेम. तो फिर हम यहाँ पे इसमें इसकी क्या चेक करते हैं, एसोसिएटिव. अगर हम यहाँ पे बात करें कि जब भी पावर की बात करते हैं तो हमेशा ये क्या होता है, दैट इज राइट टू लेफ्ट, और अगर मल्टीप्लाई डिवाइड होता है तो दैट इज लेफ्ट टू राइट एंड सेम इज द लेफ्ट टू राइट. तो अगर सिंपल वे में मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस इक्वेशन को स्कैन किया और स्कैन करने के बाद पहले क्या सोल्व किया, ब्रैकेट, ब्रैकेट के टर्म क्या आ गया मेरा ए बी प्लस फिर क्या है सी. क्लियर. तो अगेन अब ये ऑपरेंड्स है, ये फिर क्या करेगा, दोबारा इस इक्वेशन को स्कैन करेगा फिर इसको सोल्व करेगा. एक ऑपरेटर इज दिस, दूसरा ऑपरेटर इज सी और ऑपरेटर क्या आ गया दोनों के बाहर. तो इसका मतलब अगर हम सिंपल मेथड को यूज करते हैं तो जितनी लार्ज मेरी इक्वेशंस होगी मुझे क्या करना पड़ेगा, उतनी बार उसको स्कैन करना पड़ेगा. लेकिन स्टैक के थ्रू हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि वी हैव टू बी, जितनी भी लार्जर मेरी यहाँ पे इक्वेशंस है मैं एक बार में उसको क्या कर सकता हूँ, स्कैन कर सकता हूँ. क्लियर. अब दो रूल्स वो यहाँ पे लेके चलता है कि अगर एक इक्वेशन के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ द ऑपरेटर्स एंड सेकंड वन इज द नंबर ऑफ द ऑपरेंड्स. अगर ऑपरेटर आता है पुट इट इनटू द स्टैक और अगर ऑपरेंड्स आता है पुट इट इनटू द एक्सप्रेशन. वो कब तक सोल्व करते जाना है, जब तक मेरा स्टैक क्या ना हो जाए एम्प्टी. क्लियर. लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली ब्रैकेट, इट इज ए ऑपरेटर, पुट इट इनटू द स्टैक. अभी मेरा एक्सप्रेशन क्या है एम्प्टी. देन ए इज ए ऑपरेंड्स, तो मैं कहां पुट करूंगा, एक्सप्रेशन के अंदर. देन प्लस ब्रैकेट अगेन ऑपरेटर, पुट इट हियर, देन ए. ओके, नेक्स्ट वन इज द देन अगेन ब्रैकेट, तो ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट. ओके, एक्सप्रेशन के अंदर क्या है, दैट इज ए. नाउ क्या है, बी कहां जाएगा एक्सप्रेशन के अंदर, दैट इज ए एंड बी. नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लाई कहां पे जाएगा, ब्रैकेट्स आ रहा है स्टैक के अंदर और इक्वेशन में मेरा बी भी क्या है, दैट इज ए बी. अब नेक्स्ट क्या है, दैट इज सी. सी क्या है, ऑपरेंड्स कहां जाएगा, ऑपरेंड्स एक्सप्रेशन के अंदर, दैट इज ए बी एंड सी. नेक्स्ट क्या है, अब ब्रैकेट क्लोज. इसका मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया, दिस ब्रैकेट क्लोज. तो जब ये ब्रैकेट क्लोज होगा जितनी ऑपरेटर्स इसके अंदर यहाँ पे रहेंगे वो बाहर जाएंगे. अब इसके अंदर ऑपरेटर्स कितने हैं, 1. तो स्टैक क्या कहता है कि स्टैक के अंदर जब एक ही ऑपरेटर है, अभी कौन सा, मल्टीप्लाई, तो यही जब बाहर जाएगा तो ये यहां से क्या निकल जाएगा, दैट इज ए बी सी एंड मल्टीप्लाई. क्लियर. नेक्स्ट क्या आया,
दैट इज हमने कौन से को किया, दैट इज ब्रैकेट क्लोज हो गया। नेक्स्ट क्या आ गया, डिवाइड। ठीक, तो नेक्स्ट जब यहाँ पे डिवाइड आया, अब ये चीजों को कर रहा है कि यहाँ पे क्या है प्लस और यहाँ पे क्या चीजों को है डिवाइड। तो जब वो इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे सोल्व करेगा तो ये चेक करेगा कि जो लास्ट वाला ब्रैकेट आया है कि क्या मेरा डिवाइड प्लस की प्रीडेंस उससे ज्यादा है या कम है। तो उसकी प्रीडेंस क्या है, उससे ज्यादा। तो ये किसका भी वेट करेगा, यहाँ पे इस ब्रैकेट क्लोज होने का करेगा। तो मेरी इक्वेशन क्या आ गया, दैट इज ए बी सी एंड मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे डी, तो इसके अंदर क्या है ब्रैकेट प्लस एंड डिवाइड। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, ए बी सी मल्टीप्लाई एंड डी क्या था ऑपरेंड्स, वो कहाँ पुट हुआ, स्टैक के अंदर। अब क्या हो गया यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, इसका मतलब मेरा स्टैक क्या हो जाएगा, एम्प्टी। अब मेरे स्टैक के पास यहाँ पे कितने ऑपरेटर्स हैं, 2। क्लियर। तो स्टैक क्या कहता है, जो सबसे लास्ट में आए वो पहले निकलेगा। इसका मतलब जब यहाँ पे हम इस एक्सप्रेशन को पुट करेंगे तो पहले क्या आ गया, दैट इज डिवाइड और फिर क्या आ गया प्लस। तो जब कोई सी भी एक्सप्रेशन को जब हमको यहाँ पे इसको सोल्व करना है तो वी हैव टू बी सॉल्व यूजिंग स्टैक। ओके, नाउ टेक अनदर एग्जांपल कि सपोज मेरे पास क्या एक्सप्रेशन है, दिस वन। सेम इसी सीक्वेंस में हमको यहाँ पे फॉलो करके चलना है कि सबसे पहले हमने क्या किया, हर सिंबल को क्या किया, स्कैन। ठीक, तो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स कि यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन को क्या किया, स्कैन किया। जितने भी ऑपरेटर्स हैं सबसे पहले क्या है ब्रैकेट, ब्रैकेट कहाँ जाएगा, स्टैक के अंदर। मेरा एक्सप्रेशन क्या है, एम्प्टी। मेरा एक्सप्रेशन क्या है अभी, एम्प्टी। नेक्स्ट क्या आया, ए को स्कैन किया। ए क्या है ऑपरेटर्स, कहां पे पुट कर दूं मैं, एक्सप्रेशन के अंदर। नेक्स्ट क्या आया, प्लस को आया। तो प्लस कहां जाएगा मेरा, एक्सप्रेशन के अंदर, सॉरी स्टैक के अंदर। दिस इज स्टैक। क्लियर। कब तक करते जाना है, जब तक मेरा स्टैक क्या ना हो जाए, एम्प्टी। तो पुट क्या किया, ए है तो एक्सप्रेशन के अंदर अभी क्या रहा, ए। नेक्स्ट क्या आया, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट फिर कहां जाएगा, प्लस एंड ब्रैकेट स्टैक के अंदर, एक्सप्रेशन के अंदर क्या है, ए। नेक्स्ट क्या आया, दैट इज बी। तो जब मैं बी को पुट करूंगा तो बी कहां जाएगा मेरा, एक्सप्रेशन के अंदर, क्योंकि बी क्या है ऑपरेंड्स। नेक्स्ट क्या आया, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कहां जाएगा, ब्रैकेट दिस एंड मल्टीप्लाई इसके अंदर। तो मेरा अभी एक्सप्रेशन के अंदर क्या है, दैट इज ए एंड बी। नेक्स्ट क्या आया, दैट इज सी। सी क्या है मेरा ऑपरेंड, तो वो मेरा यहाँ पे कहा जाएगा, इस एक्सप्रेशन के अंदर जाएगा, दैट इज ए बी एंड सी। क्लियर। नेक्स्ट इज माइनस। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द माइनस। तो जैसे ही माइनस आया तो प्लस ब्रैकेट, अभी उसके अंदर क्या है, मल्टीप्लाई। तो अब वो यहाँ पे क्या कहता है कि जैसे ही माइनस आया तो हम डायरेक्टली इस मल्टीप्लाई को यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। तो जब यहाँ पे इसको पुट करेंगे, पहले क्या है मल्टीप्लाई, फिर क्या आएगा माइनस। अब वो देखेगा क्या मेरी इसकी प्रीडेंस माइनस, क्या मेरी इसकी प्रीडेंस मल्टीप्लाई से ज्यादा है या कम है। तो वो यहाँ पे देख रहा है कि इसकी प्रीडेंस क्या है, मल्टीप्लाई से ज्यादा। तो वो क्या यहाँ पे कहता है कि जो ऑपरेटर्स पहले है, कौन सा, मल्टीप्लाई में, उस ऑपरेटर को यहाँ से निकालू पहले और कहां पे पुट कर दूं, कहां पे पुट किया, इन द एक्सप्रेशन। तो इट मींस जब भी मैं यहाँ पे इसको अगर यूज कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई इसको यूज ना करके वो यहाँ पे क्या चीज करेगा कि पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई को यहाँ से मूव करेगा, फिर माइनस को वो यहाँ पे पुट करेगा। और मल्टीप्लाई मेरा स्टैक के अंदर से निकल के कहाँ पे गया, इनटू द एक्सप्रेशन। नेक्स्ट कौन सा आ गया, दैट इज अगेन ब्रैकेट। तो वो यूज क्या करेगा, ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट माइनस अगेन ब्रैकेट। एक्सप्रेशन मेरा क्या है, दैट इज ए बी सी एंड मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्या आया, डी। डी मेरा क्या है, ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स है तो कहां जाएगा, एक एक्सप्रेशन के अंदर, ए बी सी मल्टीप्लाई डी। नेक्स्ट क्या आया, डिवाइड। डिवाइड मेरा क्या है, ऑपरेटर, व्हेन वेयर वी हैव टू बी पुट हियर इनटू द स्टैक। एक्सप्रेशन में मेरा अभी कोई चेंज नहीं है, दैट इज ए बी सी मल्टीप्लाई डी। नेक्स्ट क्या आया, दैट इज ई। ई मेरा क्या है, ऑपरेंड्स। तो वो मेरा कहां पे जाएगा, दैट इज ए बी सी मल्टीप्लाई डी एंड ई। क्लियर इतनी चीजें। नेक्स्ट क्या आया, दैट इज पावर। ठीक, तो ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट और यहाँ पे अभी क्या है, डिवाइड। तो अभी वो क्या कहता है, पावर डायरेक्टली वहां पे यूज नहीं होगा। वो क्या देखेगा, जब अगर पावर्स यहाँ पे आता है, क्या अगर पहले वाले की प्रीडेंस उससे ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा, बाहर निकलेगा। लेकिन यहाँ पे पावर की प्रीडेंस क्या होती है, डिवाइड से ज्यादा। तो ये इसका वेट करेगा, ये यहां से डिवाइड को बाहर नहीं मूव करेगा। तो मेरा एक्सप्रेशन क्या है, सेम। इसका मतलब अगर यहाँ पे सपोज प्लस आता, उसकी प्रीडेंस क्या होती, कम, तो यहां से डिवाइड को हम क्या करते, पहले
बाहर, उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस को करते। तो यहाँ पे जब पावर आया तो पावर की प्रेजेंस क्या है, डिवाइड से ज्यादा, तो यहाँ पे ये अभी डिवाइड को बाहर रिमूव नहीं करेगा, मेरी एक्सप्रेशन इज सेम। नेक्स्ट कौन सा आया, एफ। तो जब एफ को हमने यहाँ पे पुट किया, दैट इज ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट डिवाइड पावर एफ, कहां पे गया, ए बी सी मल्टीप्लाई डी ई एंड एफ। ठीक, नेक्स्ट क्या हो गया, ब्रैकेट क्लोज। तो जैसे ये ब्रैकेट क्लोज हुआ मींस अब ये ब्रैकेट जो क्लोज होगा ये वाले के अंदर, इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट माइनस। तो जब ये ब्रैकेट सोल्व होगा तो सबसे पहले क्या निकलेगा यहाँ पे, फर्स्टली मेरी एक्सप्रेशन दिस, बाद में कौन आया था, पावर, तो सबसे पहले क्या निकलेगा, पावर, उसके बाद कौन सा जाएगा, डिवाइड, उसके बाद कौन सा जाएगा, डिवाइड। इसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं कि कहां पे आ गया, दैट इज ब्रैकेट क्लोज, देन क्या आ गया, मल्टीप्लाई। तो जब ये मल्टीप्लाई आया यहाँ पे, ये फिर कहां जाएगा, अभी मेरे एक्सप्रेशन के अंदर क्या है, प्लस दिस एंड माइनस। क्लियर। तो मल्टीप्लाई आया यहाँ पे, फिर वो क्या चेक कर रहा है कि मल्टीप्लाई आने के लिए सबसे पहले वो क्या चेक करेगा, माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है, और मल्टीप्लाई की प्रेजेंस क्या होती है, माइनस से ज्यादा। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस मल्टीप्लाई को मैं यहाँ से रिमूव नहीं करूंगा, ये किसका वेट करेगा, इसको मल्टीप्लाई की प्रेजेंस ज्यादा है तो ये ब्रैकेट क्लोज होने का वेट करेगा। तो इसका मतलब आवर एक्सप्रेशन इज सेम, ए बी सी मल्टीप्लाई डी ई एफ पावर एंड डिवाइड। क्लियर। नेक्स्ट इज द जी। तो यहां पे क्या आया, जी, जी कहां जाएगा मेरा, स्टैक के अंदर नहीं जाएगा, ये कहां जाएगा, एक्सप्रेशन के अंदर, ए बी सी मल्टीप्लाई डी ई एफ पावर एंड डिवाइड, सॉरी एंड लास्ट में क्या आ गया, दैट इज जी। क्लियर। अब वो क्या करेगा, अगेन ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट क्लोज, इसका मतलब वो इस ब्रैकेट क्लोज हुआ और इस ब्रैकेट के अंदर जितना भी आइटम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ से रिमूव, और कहां पे ऐड हो जाएंगे, एक्सप्रेशन के अंदर, दैट इज डी ई एफ पावर डिवाइड जी, और क्या आ गया, मल्टीप्लाई एंड माइनस। क्लियर। नेक्स्ट कौन सा आया, दैट इज मल्टीप्लाई, अगेन फिर मल्टीप्लाई है, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, प्लस। अब वो देखेगा मल्टीप्लाई की प्रेजेंस क्या है, प्लस से ज्यादा, तो यहाँ पे ये प्लस को हम रिमूव बाहर नहीं करेंगे, तो मेरी एक्सप्रेशन इज सेम, दैट इज मल्टीप्लाई डी ई एफ पावर डिवाइड जी मल्टीप्लाई एंड माइनस। क्लियर। नेक्स्ट कौन सा आया, दैट इज एच। एच मेरा क्या है, ऑपरेंड्स, तो मैं कहां पुट कर दूं इसको, स्टैक के अंदर। तो मेरा एक्सप्रेशन क्या आ गया, ए बी सी मल्टीप्लाई डी ई एफ पावर डिवाइड जी मल्टीप्लाई एंड माइनस। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, दैट इज ब्रैकेट। जैसे ही ब्रैकेट क्लोज हुआ इसका मतलब स्टैक मेरा एम्प्टी। हमें कब तक मूव करते जाना है, जब तक मेरा स्टैक क्या ना हो जाए, एम्प्टी। तो यहां से जब हुआ ब्रैकेट क्लोज होगा, दोनों ऑपरेटर्स बाहर निकलेंगे। तो फर्स्टली वी हैव टू बी राइट आउट एक्सप्रेशन, दैट इज जी, मैं नीचे लिख देता हूं, मल्टीप्लाई माइनस, दोनों ऑपरेटर्स हुए, ओ सॉरी यहाँ पे क्या था, एच। ठीक, दोनों ऑपरेटर्स जब यहां से मल्टीप्लाई माइनस, बाहर कौन सा निकला यहाँ पे, एच, और एच के बाद जब दोनों वैल्यूज यहाँ पे निकला तो सबसे पहले बाहर क्या जाएगा, मल्टीप्लाई, फिर क्या जाएगा, दैट इज माइनस, सॉरी माइनस नहीं है, दिस वन इज प्लस, तो यहाँ पे क्या जाएगा मेरा प्लस। तो दिस इज द माई फाइनल एक्सप्रेशन की वी हैव टू बी कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन इनटू पोस्टफिक्स यूजिंग स्टैक। डिफरेंस क्या हुआ कि जब भी इस एक्सप्रेशन को मुझे यहाँ पे सोल्व करना है, अगर ये मेरे पास अब मल्टीपल एक्सप्रेशन है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ता, मैं सिंपल वे में अगर सोल्व कर रहा हूं तो सबसे पहले किसको सोल्व करता है, दिस ब्रैकेट को स्कैन किया, इस इक्वेशन को, इस ब्रैकेट को सोल्व किया, फिर वो क्या करता है, दोबारा से इसको स्कैन करता है और कौन सा ब्रैकेट सोल्व करता है, दिस ब्रैकेट को, फिर क्या करता है, दोबारा स्कैन करता है इस ब्रैकेट को। इसका मतलब एवरी स्टेप के अंदर हमें वहां पे क्या करना पड़ रहा है, सिंपल मेथड्स में इस एक्सप्रेशन को बार बार स्कैन करना पड़ रहा है, जबकि यूजिंग द स्टैक हमने क्या किया, एक बार ही पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को स्कैन किया। सेम इसी तरह कि मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं इनटू द प्रीफिक्स। क्लियर। तो दिस इज द एक्सप्रेशन कि वी हैव टू बी कन्वर्ट इनटू द पोस्टफिक्स। नाउ एक्सप्रेशन के लिए अब दूसरा एक रीजन आता है कि अगर मैंने एक एक्सप्रेशन क्या दिया कि अभी तक हमने कन्वर्ट किसको किया कि मेरे पास एक इक्वेशंस थी, हमने उसको कन्वर्ट किस में किया, इनटू द पोस्टफिक्स। अब मुझे एक एक्सप्रेशन गिवन है दैट इज 562
प्लस मल्टीप्लाई दिस, और व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस। अगर इस इक्वेशंस को मुझे यहाँ पे सोल्व करना है तो फर्स्टली मुझे यहाँ पे वी हैव टू बी फाइंड आउट कि मेरे पास एक्सप्रेशन किस टाइप की है। तो एक्सप्रेशन मुझे कहाँ पे रिटर्न है, इनटू द पोस्टफिक्स। पोस्टफिक्स मींस ऑल द ऑपरेटर्स कहाँ होंगे, मेरे ऑपरेंड्स के बाद में, कि ऑपरेंड्स क्या होंगे 5 6 2 देन प्लस। तो ये एक्सप्रेशन किस में गिवन है मुझे, इनटू द पोस्टफिक्स। तो जब इसको सॉल्व मुझे यहाँ पे करना है तो सेम फर्स्ट की तरह हमने क्या किया, जितने भी सिंबल्स हमें यहाँ पे गिरे हैं तो हमने इसको क्या किया, सेपरेटली पहले स्कैन किया। दैट इज 12, दैट इज 4, दैट इज डिवाइड एंड दैट इज माइनस। अब इस इक्वेशंस को अगर मुझे यहाँ पे स्कैन करना है, स्टार्ट करना है, तो यूजिंग किसके होगा, स्टैक। तो जब इस स्टैक के अंदर यहाँ पे कह रहा है कि दो ही चीजें होंगी, कि अगर इफ ऑपरेंड्स कम, कि अगर मेरे यहाँ पे क्या आता है ऑपरेंड्स, तो वो उसको डायरेक्टली कहां पुट कर दो, इनटू द स्टैक। क्लियर। 5 क्या है ऑपरेंड्स, तो हमने कहां पुट किया, इनटू द स्टैक। अगेन क्या आया 6 मेरा क्या है ऑपरेंड्स, तो मैंने क्या कर दिया 5,6 कहां पुट किया इसको, इनटू द स्टैक। नेक्स्ट क्या आया 2, तो 5,6,2 2 भी क्या है मेरा यहाँ पे ऑपरेंड्स, तो उसको कहां पुट करते गए स्टैक। इस मींस कि जितने भी सारे ऑपरेंड्स मेरे यहाँ पे आते जाएंगे हम उसको कहां पुट करते जाएंगे, इनटू द स्टैक। नाउ क्या आया प्लस, इसका मतलब ये सारे क्या चीज आ रहे हैं कि दैट इज एक स्टैक का जब हम यूज कर रहे हैं, 5 इधर आया, 6 इधर आया, नेक्स्ट का आया 2। अब क्या आया ऑपरेटर। अब जैसे ही ऑपरेटर आया तो हमने क्या काम किया कि व्हेन ऑपरेटर कम्स, तो टॉप के 2 एलिमेंट्स जो हैं, टॉप 2 एलिमेंट्स जो हैं उनको रिमूव करो, वो ऑपरेटर उन दोनों के बीच में अप्लाई करो। टॉप के 2 कौन सा हो गया, एक 2 निकला, एक कौन सा 6, तो उस ऑपरेटर को उन दोनों के बीच में अप्लाई करो, और थर्ड पार्ट में क्या चीज है, इसका रिजल्ट निकालो और इन दोनों की जगह यहाँ पे पुट कर दो। मींस कि जब यहाँ पे टॉप 2 कौन सा होगा 6 एंड 2, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों को रिमूव किया, प्लस ऑपरेटर उनके बीच में अप्लाई किया, और जो उनका रिजल्ट आया 6 + 2 दैट इज 8, वी हैव टू बी पुट हियर। नेक्स्ट क्या आया मल्टीप्लाई। अब मेरे पास वहां पे कितना है, एक 5 और एक 8। टॉप 2 सेम क्या कहते हैं, रिमूव टॉप 2 एलिमेंट, रिमूव किए, मल्टीप्लाई को उसके बीच में अप्लाई किया, जो मेरा इसका आंसर आया 8 × 5 40, पुट हियर। नेक्स्ट क्या आया 12 ऑपरेटर, तो हमने फिर इसको पुट किया, दैट इज 40, 12। नेक्स्ट 4 इज ए ऑपरेटर, 12, 4। नेक्स्ट क्या आया डिवाइड ऑपरेटर, तो वो फिर कहता है कि सेम टॉप के 2 कौन है 12 एंड 4, तो इन दोनों को हमने वहां से रिमूव किया, ऑपरेटर को उन बीच में अप्लाई किया, यहाँ पे अभी कितना है 40, तो जब इन दोनों को अप्लाई किया 12 / 4, तो यहां से क्या निकला दैट इज 3। नव क्या किया माइनस, तो फिर दोनों को रिमूव किया एंड माय आंसर इज 37। तो व्हेन an expression is given into the postfix notations, so we have to be solve it using the stack. क्लियर। तो यही एक प्रोसीजर है कि अब अगर ये चीजें क्लियर हुआ कि अगर मुझे करना है, एक और एग्जांपल को इसको यहाँ पे ले लेते हैं कि सपोज मेरे पास अगेन फिर क्या है इक्वेशंस है गिवन किस में है, इनटू द पोस्टफिक्स। कैसे सोल्व करना है, फर्स्ट इज 12 देन 7 देन 3 माइनस डिवाइड 2 1 5 प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो सेम इसी तरह अप्लाई करना है कि फर्स्टली क्या है दैट इज 12, नेक्स्ट क्या आ गया 7, तो 12, 7, नेक्स्ट क्या आया 3, तो 12, 7, 3। नेक्स्ट माइनस टॉप के 2 रिमूव करो, टॉप के 2 रिमूव किया, उस ऑपरेटर को यहाँ पे अप्लाई करो उसके बीच में, तो आंसर कितना आ गया दैट इज 4। नेक्स्ट क्या कर रहा है डिवाइड, टॉप के 2 रिमूव करो, डिवाइड को बीच में किया, आंसर कितना आ गया दैट इज 3। नेक्स्ट क्या आया 2, तो 3, 2। नेक्स्ट क्या आया 1, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्या आया 5, तो 3, 2, 1, 5। नेक्स्ट प्लस अगेन टॉप के 2, इसका मतलब 3 2 यहां पे रहा, टॉप 2 वी हैव टू बी रिमूव, देन सम इट प्लस, तो आंसर इज 6। नेक्स्ट इज द मल्टीप्लाई, तो 3, अगेन वी हैव टू बी रिमूव और मल्टीप्लाई 2 × 6 दैट इज 12। क्लियर। तो देन वी हैव टू बी माइनस, तो जितने भी ऑपरेटर्स हैं, सॉरी लास्ट वन इज द प्लस, दिस वन इज द प्लस। तो जैसे यहाँ पे प्लस को किया तो क्या करेगा 12, 3 + 12 दैट इज द आंसर इज 15।
तो मीन्स जब भी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को हमको सोल्व करना है तो जितने भी सारे ऑपरेंड्स आएंगे उसको हम स्टैक में पुट करते जाएं। जैसे ही एक ऑपरेटर आएगा तो हमने क्या किया, नंबर 1 टॉप के 2 एलिमेंट्स को यहां से रिमूव किया। सेकंड क्या किया, उस ऑपरेटर को उन ऑपरेंड्स के बीच में अप्लाई किया और उसका रिजल्ट कैलकुलेट किया। थर्ड स्टेप में क्या किया, उसके रिजल्ट को कहां पुट कर दिया, इनटू द स्टैक। ठीक, तो इसी को अब यहाँ पे देख लेते हैं। जो प्रीवियस में हमने किया था कि एक अगर मुझे एक्सप्रेशन एल्गोरिथम लिखना है तो हमने क्या चीजें किया कि सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या बोला कि जो भी एक एक्सप्रेशन है हमने क्या कर दिया, उसके राइट साइड में एक पैरेंथेसिस ऐड किया ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे कहां तक स्कैन करना है। उसके बाद क्या किया, जो मेरी गिवन एक्सप्रेशन है P, उसको हमने स्कैन किया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कि हमने किया क्या था कि सारे के सारे एक्सप्रेशंस को हमने यहाँ पे स्कैन किया, और स्कैन कहां से किया था, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो सेम यही चीज है कि स्कैन किया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड रिपीट किया 3 और 4 स्टेप फॉर ईच एलिमेंट। कब तक रिपीट करते गए, जब तक कि मेरा स्टैक एम्प्टी ना हो जाए कि, और हमने लास्ट में क्या ऐड किया था, ब्रैकेट की, जब तक मुझे लास्ट ब्रैकेट एनकाउंटर ना हो जाए। ठीक, थर्ड वन क्या था, इफ एन ऑपरेंड्स अकर। हमने यहाँ पे बोला कि अगर ऑपरेंड्स आया कहां पुट किया, स्टैक के अंदर। तो अगर कोई एक ऑपरेंड्स अकर आया कि पुट इट इनटू द स्टैक। क्लियर। सेकंड, इफ ऑपरेटर अकर, तो क्या चीजें किया था, जैसे ऑपरेटर आया कि टॉप के 2 एलिमेंट जो भी हैं, कि टॉप 2 एलिमेंट को हमने क्या किया, रिमूव किया फ्रॉम द एक्सप्रेशन। सपोज नाम क्या के दे दिया उनको, ए एंड बी। जो ऑपरेटर्स है वो उसके बीच में अप्लाई किया, उसका रिजल्ट निकाला और वापस उस रिजल्ट को कहां कर दिया, उस स्टैक के अंदर पुट कर दिया। क्लियर। और अगेन इन तीनों स्टेप्स को यहाँ पे 3 और 4 को हम रिपीट करते रहे जब तक कि मेरी यहाँ पे एक एक्सप्रेशन पूरा कंप्लीट सोल्व ना हो जाए। इसका मतलब जब तक मैं यहाँ पे करता जाऊंगा जब तक कि मेरा एक्सप्रेशन स्टैक के अंदर क्या ना आ जाए, एम्प्टी। क्लियर। नाउ एक छोटा सा और एक्सप्रेशंस को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है तो इस एक्सप्रेशन को अगर मुझे कन्वर्ट करना है इनटू द पोस्टफिक्स, कोई भी एक लार्ज एक्सप्रेशन यहाँ पे दे दिया, तो दो ही चीजें होगी कि अगर मुझे यहाँ पे चेक करना है तो एक्सप्रेशन को करने के लिए एक मेरी क्या होगी, प्रीडेंस वैल्यू। इसका मतलब प्रीडेंस में सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, सबसे पहले क्या सोल्व होगा, ब्रैकेट। फिर अगर कहीं पावर है तो क्या सोल्व होगा, पावर। उसके बाद अगर डिवाइड या मल्टीप्लाई है तो फिर क्या सोल्व होगा, डिवाइड या मल्टीप्लाई। और फिर क्या सोल्व होगा, प्लस एंड माइनस। तो अगर किसी भी गिवन एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी यहाँ पे मेरा ब्रैकेट, पावर, डिवाइड, प्लस हो रही है तो हम उसको क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रीडेंस वी हैव टू बी सॉल्व इट। सेकंड क्या होगा कि सपोज मैं यहाँ पे बोल दूं कि जैसे प्रीडेंस पावर आया तो हमेशा हम इसको कहां सोल्व करते हैं, दैट इज राइट टू लेफ्ट। अगर एक स्टैक के अंदर ही वहां पे क्या आ गया, दो ऑपरेटर्स आ गया, इसको कौन कौन सा, मल्टीप्लाई एंड द डिवाइड। दोनों क्या है, प्रीडेंस दोनों की सेम है, दोनों के प्रीडेंस क्या है, सेम। तो यहाँ पे हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे, दैट इज एक एसोसिएटिविटी फॉलो करेंगे। कब, कि अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले प्रीडेंस के सोल्व करते जाएंगे। कौन सा सबसे पहले सोल्व होगा, ब्रैकेट, फिर कौन सा होगा, डिवाइड, फिर प्लस एंड माइनस, फिर मल्टीप्लाई एंड द प्लस। लेकिन अगर वहां पे इसको सोल्व करते हुए दो ऑपरेटर्स ऐसे आए जिनकी प्रीडेंस क्या है, सेम, एज एग्जाम्पल डिवाइड एंड द मल्टीप्लाई, तो फिर हम क्या चेक करेंगे, व्हाट इज द एसोसिएटिविटी रूल। तो अगर पावर्स आई है तो हमेशा वो क्या कहता है, दैट इज राइट टू लेफ्ट। तो अगर मल्टीप्लाई, डिवाइड या प्लस माइनस होता है तो वो मेरा एक हम एसोसिएटिव रूल फॉलो करेंगे, दैट इज द लेफ्ट टू राइट। क्लियर। तो सेम स्टैक के लिए फायदा क्या होगा कि पूरी की पूरी होल एक्सप्रेशन को मुझे क्या करना है, एक बार में स्कैन करना है। तो मैं यहाँ पे इसको एक सिंबल, फिर एक टेबल बना लेता हूं। एक तरफ क्या पुट किया हमने, सिंबल, एक तरफ क्या होगा, सोल्व करना है स्टैक, और नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या कर दिया, दैट इज द एक्सप्रेशन। क्लियर। सेम वही रूल्स को अप्लाई करते जाएंगे कि अगर इस एक्सप्रेशन को करना है, यही चीज है कि सबसे पहले मेरा क्या है, दैट इज की, के क्या है, ऑपरेंड्स है। तो जैसे ही मेरा ऑपरेंड्स आया तो मुझे यहाँ पे इसको पुट कहाँ करना है, स्टैक के अंदर। तो अभी मैंने स्टैक के अंदर नहीं, सॉरी स्टैक के अंदर नहीं करना, मुझे कहाँ पुट करना है, एक्सप्रेशन के अंदर। नेक्स्ट क्या आया मेरा, प्लस। नेक्स्ट मेरा क्या आ गया, प्लस। तो प्लस यहाँ पे क्या कहता है कि किसके अंदर जाएगा, एक्सप्रेशन के, स्टैक के अंदर। एक्सप्रेशन में मेरा क्या है, दैट इज के। नेक्स्ट क्या आया, एल। तो जब एल को मैंने यहाँ पे किया, एक्सप्रेशन में मेरा प्लस, यहाँ पे क्या आ गया, दैट इज के एंड एल। क्लियर।
नेक्स्ट क्या आया, दैट इज माइनस। अब वो जैसे ही माइनस आता है, अभी स्टैक के अंदर क्या है, प्लस, तो वो यहाँ पे कहता है कि हम डायरेक्टली माइनस को यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। अब वो देखेगा इसकी प्रीडेंस क्या है। जो लास्ट वाला आया मेरा माइनस, माइनस की प्रीडेंस मेरी प्लस से ज्यादा है, कम है या इक्वल है। तो जब वो यहाँ पे देखेगा प्लस एंड माइनस दोनों की प्रीडेंस क्या है, इक्वल, दोनों की प्रीडेंस क्या है, इक्वल, तो अब वो किसके अकॉर्डिंग चलेगा, अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिव रूल। तो एसोसिएटिव रूल क्या हमेशा क्या कहता है कि क्या परफॉर्म करेगा, लेफ्ट टू राइट। तो इसका मतलब वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहले वो स्टैक के अंदर से क्या करेगा, इस प्लस को रिमूव करेगा और कहां पे ऐड कर देगा, इस एक्सप्रेशन के अंदर कर देगा, और उसके बाद वो माइनस को यहाँ पे पुट करेगा। क्लियर, क्या दोनों की प्रीडेंस क्या थी, इक्वल, तो वो फिर किसके थ्रू हमने फॉलो किया, दैट इज द एसोसिएटिव रूल। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा आया, दैट इज एम। एम मेरा यहाँ पे क्या है, सेम माइनस ऑपरेंड्स है, तो मैंने कहा पुट किया इसको इनटू द एक्सप्रेशन। क्लियर चीज। नेक्स्ट क्या आया, दैट इज मल्टीप्लाई। ठीक, अब मेरा यहाँ पे क्या चीज है कि सेम मेरा एक्सप्रेशन है यहाँ पे के एल प्लस एंड एम। अब पहले कौन सा है यहाँ पे, माइनस, ठीक, नेक्स्ट कौन सा आया, मल्टीप्लाई है। अब वो देखेगा क्या उसकी प्रीडेंस उससे कम है, इट मींस यहाँ पे जब वो अप्लाई करेगा मल्टीप्लाई को, तो मल्टीप्लाई क्या चीज है, मल्टीप्लाई की प्रीडेंस क्या होती है, माइनस से ज्यादा। तो यहाँ पे ये अभी वेट करेगा, उसको वहां पे बाहर नहीं निकालेगा। अगर कम होता तो वो क्या कहता है कि पहले वाला जो भी ऑपरेटर है वो बाहर जाएगा, देन ये यहाँ पे एंटर करेगा। क्लियर। नेक्स्ट कौन सा हो गया, दैट इज एन। तो एन मेरा क्या है, ऑपरेंड्स है, वो मेरा यहाँ पे स्टैक के अंदर नहीं जाएगा, तो मेरा एक्सप्रेशन में ऐड होगा, दैट इज प्लस एम इंटू एन, एम एन। क्लियर। नेक्स्ट कौन सा आया, दैट इज प्लस। अब जैसे ही प्लस यहाँ पे आता है तो वो फिर वो क्या चेक करेगा कि दो ऑपरेटर्स पहले से हैं वहां पे, कौन कौन सा, दैट इज मल्टीप्लाई, सॉरी माइनस एंड मल्टीप्लाई। तो अगर वो यहाँ पे क्या कहता है प्लस, तो वो क्या कह रहा है, अभी प्लस यहाँ पे डायरेक्टली ऐड नहीं होगा, प्लस क्या है, उसकी प्रीडेंस मल्टीप्लाई से कम। तो वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे इस गिवन एक्सप्रेशन के अंदर, तो वो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर देगा, जो मेरी एक गिवन एक्सप्रेशन होगी उस एक्सप्रेशन के अंदर से मल्टीप्लाई को क्या करेगा, पहले बाहर करेगा, मल्टीप्लाई को क्या करेगा, बाहर। वेट एक मिनट, ये थोड़ा, तो वो क्या करेगा, यहां से मल्टीप्लाई को स्टैक के अंदर से रिमूव करेगा, कहां पे ऐड कर देगा, एक्सप्रेशन के अंदर। तो अब उसके पास सिर्फ क्या बच गया, माइनस। तो माइनस है, नेक्स्ट कौन सा है, प्लस। तो वो फिर इसके साथ चेक करेगा, अब दोनों की प्रीडेंस क्या है, इक्वल। तो जैसे दोनों की प्रीडेंस वहां पे क्या है, इक्वल, तो वो देखेगा इक्वल है तो किसको अप्लाई करेगा, एसोसिएटिव रूल, और वो किसके थ्रू फॉलो करके चलेगा, लेफ्ट टू राइट। तो इसका मतलब वो यहां से माइनस को भी क्या करेगा, पहले रिमूव करेगा, उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर को क्या करेगा, स्टैक के अंदर पुट करेगा। क्लियर। नेक्स्ट कौन सा आ गया, प्लस किया, उसके बाद क्या, ब्रैकेट, तो सेम ब्रैकेट है, इसका मतलब प्लस ब्रैकेट। तो मेरा एक्सप्रेशन में अभी कोई चेंज नहीं है, प्रीवियस वाला है, एम एन मल्टीप्लाई एंड माइनस। नेक्स्ट क्या आ गया, ओ। ओ मेरा यहाँ पे क्या है, ऑपरेंड्स है, तो वो कहां पुट होगा, के एल प्लस एम एन मल्टीप्लाई माइनस ओ। मैं इसको थोड़ा सा, मेरा ओ यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट क्या आया, पावर को हमने यहाँ पे लिखा, तो पावर मेरा कहाँ आएगा, ऑपरेटर है, इसके अंदर गया, वो किसके अंदर है, ब्रैकेट के अंदर। तो ये किसका वेट करेगा, सबसे पहले ब्रैकेट क्लोज होने का, तो दैट इज के एल प्लस एम एन मल्टीप्लाई माइनस ओ। नेक्स्ट क्या आया, पी। तो पी को जब हमने स्कैन किया तो मेरा पी यहाँ पे क्या है, ऑपरेंड्स है, तो कहाँ पे ऐड होगा, मेरा एक एक्सप्रेशन के अंदर मेरा यहाँ पे ये ऐड होगा, दैट इज ओ एंड पी। नेक्स्ट क्या आया, दैट इज ब्रैकेट क्लोज। तो जैसे ही ब्रैकेट क्लोज हुआ, इसका मतलब स्टैक के अंदर क्या रह गया, प्लस। तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी हैं तो वो वहां पे स्टैक के थ्रू सारे के सारे रिमूव होंगे और कहां पे ऐड हो जाएंगे, मेरा एक्सप्रेशन के अंदर। तो अभी उसके अंदर क्या है, दैट इज पावर। तो यहां पे क्या सोल्व हो गया, मेरा पावर। क्लियर। इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट क्या हो गया, दैट इज मल्टीप्लाई। तो जब वो मल्टीप्लाई को यहाँ पे लेके चलेगा, अगेन क्या चीज हो गया, दो ऑपरेटर्स हो गया, एक यहाँ पे प्लस एक मल्टीप्लाई। तो मेरा इस एक्सप्रेशन में अगर मैं यहीं पे पुट कर दूं कि मेरा कोई भी चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्या आएगा मेरा,
दैट इज W। तो W मेरा यहाँ पे क्या है कि अगर मैं यहाँ पे बात करें कि W मेरा एक तो इस W को जब यहाँ पे पुट किया तो W कहाँ पे जाएगा, मैं इसी एक्सप्रेशन के अंदर ऐड करता जा रहा हूं कि मेरा W कहाँ पे आया, यहाँ पे मल्टीप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा मेरा, दैट इज डिवाइड। तो जब डिवाइड मेरा यहाँ पे आया तो वो फिर यहाँ पे देखेगा दो ऑपरेंड्स है, मेरा यहाँ पे क्या है, दो ऑपरेंड्स। तो जब होगा दोनों की प्रीडेंस क्या है, इक्वल, तो वो यहाँ से क्या कर देगा कि इसका मतलब स्टैक के अंदर मेरा यहाँ से ये पहले प्लस हुआ, मल्टीप्लाई को बाहर निकालेगा और मल्टीप्लाई को बाहर निकाल के कहां पे कर देगा, इस एक्सप्रेशन के अंदर सेव कर देगा। तो यहां पे मेरा क्या आया, दैट इज द मल्टीप्लाई। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, डिवाइड है, तो ये डिवाइड इसकी वैल्यूज क्या है, ज्यादा, तो ये यहाँ पे इसके लिए वेट करेगा। नेक्स्ट कौन सा आ गया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, दैट इज द u। तो जब u आएगा, मैं दोबारा यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख देता हूं, तो ये दोबारा क्या करेगा, इसको एक्सप्रेशन में सेव करेगा, दैट इज KL प्लस M N मल्टीप्लाई माइनस O P पावर W डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ओके, तो u आया, u मेरा कहां पे ऐड होगा, एक्सप्रेशन के अंदर। नेक्स्ट क्या आएगा, दैट इज डिवाइड। अब फिर वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि डिवाइड एंड डिवाइड, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, इस डिवाइड को बाहर निकालेगा और कहां ऐड कर देगा, इस एक्सप्रेशन के अंदर यहाँ पे ऐड कर देगा, P पावर W मल्टीप्लाई एंड U, एंड क्या ऐड किया, डिवाइड। अब प्लस से क्या होगा छोटा, तो ये यहाँ पे इसके लिए वेट करेगा। नेक्स्ट कौन सा आएगा, दैट इज V। तो ये मेरा क्या रहेगा, एज इट इज प्लस डिवाइड, तो मैं यहीं पे ऐड करता जा रहा हूं, इसमें वो यहाँ पे क्या ऐड कर देगा, दैट इज V। उसके बाद क्या आया, मल्टीप्लाई। तो जब वो मल्टीप्लाई आया तो यहाँ पे क्या कह रहा है, प्लस तो रहेगा, तो सबसे पहले किसको बाहर निकालेगा, वो डिवाइड को। मैं सेम इसी एक्सप्रेशन के बाद लिख रहा हूं कि वो किसको बाहर निकालेगा, डिवाइड को, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्या आया, दैट इज टी। तो जब उसने टी को किया तो मेरा एक्सप्रेशन ये यहाँ पे सेम रहेगा। मैं फिर इसको दोबारा KL प्लस M N मल्टीप्लाई माइनस OP पावर W डिवाइड मल्टीप्लाई U डिवाइड V डिवाइड। नेक्स्ट क्या आ गया, टी। तो वो मेरा टी को कहां पुट कर देगा, लास्ट में। नेक्स्ट क्या आया, प्लस। तो जब वो प्लस आया, अब यहां से देखेगा ऑपरेटर, तो वो सबसे पहले जब इस एक्सप्रेशन के अंदर आएगा तो मेरी एक्सप्रेशन क्या हो गया, KL प्लस M, पहले मैं इसको एज इट इज पुट कर देते हैं, माइनस OP पावर W डिवाइड मल्टीप्लाई U V ऑब्लिक T। अब क्या निकला, प्लस। प्लस से जब पहले देखेगा तो पहले क्या निकल के गया यहाँ से बाहर, मल्टीप्लाई, फिर क्या देखेगा, प्लस एंड प्लस, दोनों की एसोसिएटी है, तो यहाँ से क्या निकाल देगा बाहर, प्लस को बाहर निकालेगा, और यहाँ पे सिर्फ क्या रह गया, प्लस। तो नेक्स्ट क्या आया, उसके बाद Q। तो Q को जब इसने यहाँ पे निकाला तो मैं एक्सप्रेशन को इधर लिख देता हूँ, KL प्लस M N मल्टीप्लाई OP पावर W डिवाइड मल्टीप्लाई U डिवाइड V डिवाइड T मल्टीप्लाई प्लस। क्लियर। तो नेक्स्ट क्या आ गया, Q। ठीक है, और यहाँ पे अभी क्या होगा कि जब ये Q को अप्लाई करेगा तो सिर्फ कौन सा एक ऑपरेटर, प्लस, तो वो मेरा क्या निकल जाएगा, इस ऑपरेटर से वो यहाँ पे बाहर। तो जब भी हम यहाँ पे रूल करेंगे तो दिस इज द माई पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। यूज दो रूल्स को फॉलो करना है। फर्स्ट वन इज द, उसकी प्रीडेंस चेक करते जाना है, अगर प्रीडेंस सेव है तो हम किसको यूज करेंगे, दैट इज द एसोसिएटेड रूल। तो फॉर द टुडे लेक्चर वी हैव टू विद दिस। थैंक यू।